Hello children, how are you? Today I am again back with the explanation of Standard 8th English chapter number 5, that is the day the Viceroy came. Today I hope you would have read the chapter and seen the video and hope would have understood the chapter properly. Today I am going to explain you the meanings, question answer as well as the textual exercise which follows in the textbook. So let's begin first with the meanings of this chapter. Here the first meaning is Viceroy. It means in the past the man who was sent by a king or queen to rule another country. मतलब पुराने ज़माने में किंग या क्वीन जो थे वो किसी आदमी को दूसरे कंट्री को रूल करने भेजते थे, उसको बोलते थे वाइसरॉय. सेकेंड इज कैम्फर. इट मीन्स a white substance with a strong smell used to keep insects away from clothes. उसका मतलब एक टाइप का white substance है जिसे हम कपूर की गोलियां कहते हैं, वैस दैट टाइप. एंड उससे जो ये इंसेक्ट्स या जम्स क्लोथ्स में नहीं लगते, इसीलिए वो कपड़ों के बीच में रखी जाती है. द थर्ड वन इज़ अ लाइट. इट मीन्स गेट डाउन फ्रॉम अ व्हीकल, मतलब किसी भी एक व्हीकल से नीचे उतरना. द नेक्स्ट इज फोर्थ वन सर्क्यूलर्स. It means printed letters or notices that are sent to a large number of people at the same time. Circulars मतलब printed documents होते हैं जो भेजे जाते हैं लोगों को एक साथ. The next is fifth one, His Excellency. ये एक टाइटल दिया गया है. A title used when talking to or about somebody. किसी के बारे में हम जब बात करते हैं that time who has a very important position in the government, जिसका गवर्नमेंट में बहुत ही important position होता है, उसके लिए ये टाइटल दिया जाता है His Excellency. Then the sixth one is supervising. It means being in charge of something, किसी एक चीज़ का इंचार्ज होना and making sure that everything is done correctly, और सब चीज़ अच्छे से जा रही हो, अच्छे से हो रही हो, उसका इंचार्ज होना और उसको सुपरवाइज करना, that is called supervising. The next one is consulted. It means asked for information or advice. किसी से information या किसी advice किसी से मांगना, that is called consulted. Then next eighth one is restless. It means unable to sit or stand still, मतलब सीधा बैठ ना सके या सीधा खड़े ना हो सके, और restless tiredness feel करना, उसको कहते हैं restless. The ninth one is droop. It means to become weak or sad, एकदम कमज़ोरी महसूस करना या उदास हो जाना. 10th one sought. It means looked for, tried to get, मतलब किसी चीज़ के लिए देखना, ढूंढना उस चीज़ को, या फिर किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना. Then 11th one is squatted. It means sat on their heels with their knees bent under them. ऐसे ही अपने घुटनों पे बैठना और उस नीज से बेंट होके, that is called squatted. Next 12th one is wilted. It means felt weak or tired, मतलब बहुत ही वीकनेस महसूस करना, थकावट महसूस करना. स्पेशली किस वजह से? बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट, गर्मी की वजह से. देन द 13th वन इज सेंसेशन. वो एक टाइप का फीलिंग है. सेंसेशन मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ फीलिंग. देन 14th वन इज फ्लिक्ड. इट मीन्स ही पुश्ड द एंट अवे सडनली एंड क्विकली, मतलब अचानक से उसने एंट को जोर से, सडनली, एकदम फटाक से और उसको पुश किया. यूजिंग कैसे पुश किया? यूजिंग हिज थंब एंड इंडेक्स फिंगर से, ये दोनों को यूज़ करके. Then 15th one sympathy. It means the feeling of being sorry for someone, किसी के लिए सॉरी फील करना, दया आना उसके ऊपर, that is called sympathy. Then abyss. Abyss means it's a deep empty hole, एक खाली और डीप खड्डा होता है, उसको कहते हैं abyss. Next blare. It means a loud unpleasant noise, एक बहुत ही ज़ोर की आवाज़ और जो अच्छी ना लगे ज़्यादा. The next is bustle. It means busy and noisy activity, मतलब बहुत ही एक्टिविटी, कंटिन्यूअस, बिजी और एकदम आवाज़ आने वाली एक्टिविटी. इट इज़ कॉल्ड bustle. एंड द लास्ट इज dispersed. मीन्स dispersed मतलब लास्ट में ख़त्म होना, वैसे moved apart and emptied out in different direction, मतलब वहाँ से सब लोग जाने लगते हैं, empty हो जाती है वो प्लेस, that is called dispersed. Now let's move on
to the question answers. Now in question answers, children, I have separated some questions. In textbook there are 2 questions combined, but instead of that I have separated and given you in this worksheet. So you have to write the same way as I have given you. So the first question is, why did Gopal feel proud and important? उसको क्यों प्राउड फील हो रहा था और खुद को इम्पोर्टेंट मानने लगा था? What was the reason? किस वजह से? So the answer is Gopal felt proud and important because किस वजह से? His mother had dressed him in a brown coat with brass buttons which he wore only on great occasions. किस वजह से उसको ऐसा लग रहा था, इम्पोर्टेंट महसूस कर रहा था? क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको ब्राउन कोट मतलब पहनाया था, उसमें ब्रास बटन्स लगे हुए थे और वो कोट वो हमेशा कुछ बड़े ओकेशंस होते थे, बड़ा फंक्शन होता था तभी वो पहनता था. एंड ही थॉट दैट ही लुक्ड जस्ट लाइक हिज फादर, और उसको लग रहा था वो अपने फादर के जैसे लग रहा है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट वॉज द स्पेशल ओकेशन? ये ओकेशन क्या था? जो स्पेशल ओकेशन था वो क्या था? सो द आंसर इज, द स्पेशल ओकेशन वॉज दैट द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज टू पास थ्रू गोपाल्स टाउन. जो वाइसरॉय, इंडिया का वाइसरॉय था, वो उस गोपाल के टाउन के पास से गुजरने वाले थे. सो ही वॉज टू अलाइट एट द रेलवे स्टेशन and get into a richly decorated open horse drawn cart. मतलब वो वहाँ रेलवे स्टेशन पे उतरने वाले थे एंड वहाँ से वो एक रिचली डेकोरेटेड एक ओपन हॉर्स कार्ट था, हॉर्स ड्रॉन कोच था, उसमें वो जाने वाले थे. देन वहाँ से ही वुड एस्केप टू द हिल्स फॉर द समर इन अ स्पेशल कार, और वहाँ से समर के लिए वो हिल्स में जाने वाले थे एक अपनी स्पेशल कार में. दैट वॉज द स्पेशल ओकेशन. Now let's move on to the third question, that is, what were the schools instructed to do? और उस ओकेशन के लिए स्कूल को क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी? So the answer is, circulars had gone to all schools months in advance. मतलब सर्कुलर पहुंच गए थे स्कूलों को बहुत महीने पहले ही, थोड़े महीने पहले एडवांस में ही दे दिया गया था उनको सर्कुलर, इंस्ट्रक्टिंग द अथॉरिटीज़ को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे उस सर्कुलर में दैट ऑल चिल्ड्रन शुड बी वेल ड्रेस्ड एंड लाइंड अप ऑन आइदर साइड ऑफ हिज एक्सीलेंसी रूट टू चीयर एंड वेलकम हिम. मतलब चिल्ड्रन जो उनके स्कूल के थे उनको वेल ड्रेस एकदम ड्रेसअप करके जाना है और दोनों साइड, रोड के दोनों साइड, उनके रूट के दोनों साइड खड़े हो जाना है लाइन में एंड उनको चीयर करना है और वेलकम करना है वो वाइसरॉय को. देन स्पेशल ट्रेनिंग हैड बीन गिवन टू द चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन द ग्रेट इवेंट. और इस ग्रेट इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए ये चिल्ड्रन को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी. Now let's move on to the fourth question, that is, what was the scene at the railway station? अब रेलवे स्टेशन पे क्या सिचुएशन थी, क्या सीन था? So the answer is, at the railway station the children were lined up, लाइन में खड़े कर दिए गए थे as per the instruction according to their size, मतलब हाइट वाइज उनको खड़ा किया था. और क्या था कि the better dressed ones in the front row, जिनके कपड़े बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहे थे उनको आगे के रो में खड़ा किया गया था. देन गोपाल वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड था. द ड्रिल मास्टर मार्च्ड अप एंड डाउन प्राउडली, और उनके जो ड्रिल मास्टर थे वो मार्चिंग कर रहे थे इधर से उधर और उधर से इधर. एज इफ ही वॉज सुपरवाइजिंग एन आर्मी परेड, ऐसा लग रहा था कि जैसे आर्मी में परेड को सुपरवाइज करते हैं वैसे वो परेड को सुपरवाइज कर रहे हैं. एंड इवन द हेड मास्टर कंसल्टेड हिम अबाउट द अरेंजमेंट्स, और इवन जो हेड मास्टर थे स्कूल के वो उनको एडवाइस उनकी लेके ये अरेंजमेंट के बारे में पूछ रहे थे कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए. एवरी फ्यू मिनट ही लुक्ड एट हिज वॉच, और ये जो ड्रिल मास्टर थे थोड़ी थोड़ी देर में अपनी वॉच को देख रहे थे. एंड अनाउंस द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द अप्रोचिंग वाइसरॉय, और वो वाइसरॉय कहाँ तक पहुँचे हैं उनकी एग्जैक्ट पोजिशन को अनाउंस कर रहे थे. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, what happened when the viceroy was late? अब बाद में चैप्टर में ऐसा ही explained you कि viceroy was late, he didn't arrive on time. That time what happened? क्या situation हुई तब? So an hour passed without anything happening. ऐसे ही 1 घंटा, जैसे ही बच्चे लाइन में खड़े हो गए 1 घंटा बीत गया
द चिल्ड्रन बिगैन टू गेट रेस्टलेस, और उस वजह से उनको थकान होने लगी थी. द ड्रिल मास्टर स्कोल्डेड द नॉइजी वंस, और वो थकान की वजह से बच्चे इधर उधर हिल रुल रहे थे और आवाज़ कर रहे थे, तो ड्रिल मास्टर ने उनको जो आवाज़ कर रहे थे उनको डांटा. एंड वेंट टू फाइंड आउट द कॉज फॉर द डिले, और गए क्या किस वजह से लेट हो रहा है उसका कॉज पता करने के लिए वहाँ पे गए. एज टाइम पास्ड इट बिगैन टू गेट हॉट, और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था गर्मी बढ़ रही थी. द होल ग्रुप स्टार्टेड टू ड्रूप, और सब रेस्टलेस होने लगे थे, एकदम अनईजीनेस फील करने लगे थे पूरा ग्रुप. वन बाय वन द टीचर्स सॉट द कूल शेड ऑफ द ट्रीज, और वन बाय वन टीचर्स उनको ये झाड़ के नीचे शेड में लेके गए. द चिल्ड्रन स्क्वैटेड ऑन द ग्राउंड इन ग्रुप्स एंड विल्टेड इन द हीट, और चिल्ड्रन वहाँ पे बेंड डाउन करके बैठ गए और वहाँ वेट कर रहे थे धूप में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th one. Why did गोपाल फील अ मिक्सचर ऑफ विक्ट्री एंड सिंपथी? अब गोपाल को विक्ट्री भी क्यों महसूस हो रही थी और सिंपथी भी महसूस हो रही थी? What was the reason? So the answer is Gopal felt a mixture of victory and sympathy when the ant that had been trying to crawl up his leg emerged from the sand he had thrown on it. और क्यों उसको विक्ट्री और सिंपथी महसूस हुई? कि जो एंट थी जो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और उसके ऊपर उसने मिट्टी डाल दी थी, वो उसमें से सैंड जो डाली थी उसके ऊपर से ही हैड थ्रोन ऑन इट, उसके ऊपर डाल दी थी, इस वजह से उसको विक्ट्री महसूस हो रही थी. एंड ही फेल्ट विक्टोरियस एज द एंट वॉज पजल्ड बाय गोपाल्स न्यू ट्रिक टू प्रिवेंट इट फ्रॉम क्रॉलिंग, और उसको विक्ट्रियस इसलिए महसूस हो रही थी कि एंट भी एकदम पजल हो गई थी कि ये नई नई गोपाल ट्रिक उस पर आजमा रहा था इस वजह से, और उसको अपने लेग पे चढ़ने नहीं दे रहा था. एंड ही फेल्ट सिंपैथेटिक एट द प्लाइट ऑफ द टाइनी एंट, बट वो एकदम रेस्टलेस हो गई एंट, उस वजह से उसको उस पर दया आ रही थी. नाउ द 7th क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द गेम दैट गोपाल प्लेड विद द एंट. कौन सी गेम गोपाल ने खेली वो एंट के साथ, उसके बारे में यू हैव टू गिव द डिस्क्रिप्शन. गोपाल जेंटली पिक अप द एंट ऑन अ ट्विग. गोपाल ने क्या किया, उस एंट को एक लकड़ी, जो झाड़ की लकड़ी होती है उसके ऊपर, एक डाली होती है उसके ऊपर उसको ले लिया. देन इट क्लंग टू इट, और वो चढ़ गई एंट उसके ऊपर. एंड रिमेन्ड स्टिल एज इफ एडमिटिंग डिफीट, और ऐसे ही चिपकी रही, ऐसे लग रहा था कि उसने हार मान ली हो. देन इट बिगैन टू मूव केयरफुली अलॉन्ग द ट्विग, और फिर धीरे धीरे वो एंट उस ट्विग के ऊपर चलने लगी. इट केम वेरी क्लोज टू हिज फिंगर, और वो जिस जगह से गोपाल ने उस लकड़ी को पकड़ा था उस फिंगर की तरफ पहुंच गई. एंड वुड हैव क्लाइम्ड ऑन टू हिम इफ़ ही हैड नॉट लेट गो हिज फिंगर. अगर उसने वहाँ से अपनी फिंगर नहीं हटाई होती तो उसके फिंगर पे वो चढ़ जाती एट दैट मोमेंट. एंड हेल्ड द स्टिक बाय द अदर एंड, और उसने वो स्टिक को दूसरे एंड पे पकड़ लिया. द एंड सडनली फेस्ड एबेस. एबेस में से एक खड्डा जैसा था उसमें वो डाली में, तो उसने वहाँ पे वो फेस किया. देन इट टर्न, वो देखते ही इट टर्न राउंड, और वापस दूसरी तरफ स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स गोपाल्स फिंगर. दूसरी तरफ जहाँ गोपाल ने फिंगर से पकड़ा था उस डंडी को, उस तरफ वो चलने लगी. बट गोपाल रिपीटेड द ट्रिक, शिफ्टिंग हिज फिंगर इन टाइम टू द अदर एंड ऑफ द स्टिक. और बट गोपाल ये ट्रिक खेलता रहा कि एक जगह से दूसरी जगह वो पकड़ता रहा. जैसे एंट उसकी तरफ आती तो वो अपनी फिंगर दूसरी तरफ ले जाता. ही लाइक्ड दिस गेम एंड इट वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसको ये गेम अच्छी लग रही थी, गेम जैसा लग रहा था, और वो बहुत टाइम तक चलता रहा. नाउ द 8th क्वेश्चन इज वाई डिड ही शिवर विथ फ्राइट. अब क्यों वो डर गया, किस वजह से वो डर गया गोपाल. गोपाल शिवर्ड विथ फ्राइट एट द थॉट, ये सोच के डर गया दैट द एंट कुड हैव क्लाइम्ड ओवर हिज फिंगर. उसको ऐसा लगा कि उसका जैसे ही ध्यान कहीं गया तो उसको ऐसा लगा कि उसके फिंगर पे एंट चढ़ गई होगी. एंड गॉट लॉस्ट इनटू हिज स्लीव्स, और स्लीव्स के अंदर कपड़ों में चढ़ गई होगी. ही लुक्ड फॉर इट ऑल ओवर हिज कोट, उसने पूरे कोट में उसको देखा. एंड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे भी ढूंढा. बट इट हैड कम्प्लीटली वैनिश्ड, बट दिखी नहीं कहीं पे भी एंट, इस वजह से वो डर गया था. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द वर्ड्स कनेक्टेड टू वॉर. अब वॉर से कनेक्टेड वर्ड्स जो है लड़ाई से,
that are used in the text, जो text में use किए गए हैं, to describe the game between गोपाल एंड द एंट. गोपाल और एंट के बीच में जो गेम हो रही थी उसमें जो वर्क से रिलेटेड वर्ड्स यूज़ किए दैट यू हैव टू नोट डाउन. फर्स्ट वॉज वेटेड फॉर इट्स नेक्स्ट मूव, जैसे वॉर में होता है वैसे. देन द नेक्स्ट इज द एंट इमीडिएटली मूव टूवर्ड्स हिम लाइक एन एनिमी टैंक इन अ बैटल फील्ड. दिस सेंटेंस ऑल्सो हम लोग को वॉर में जो यूज़ होते हैं वैसे आइडियाज़ देते हैं. अटैकिंग एंट, विक्ट्री, एडमिटिंग डिफीट, ये सारे वर्ड्स है जो वॉर से रिलेटेड है. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल द मीनिंग्स एंड द क्वेश्चन आंसर्स एंड यू हैव टू राइट दिस मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स इन योर FNB notebook with black and blue pen. Okay, now let's move on to the textual exercises. Now in this textual exercise you have to write it with a pencil. As you all know, you are doing in the previous this one also chapters, so you have to write it with a pencil. In this the grammar part, it is about participles जो हमने tense किए हैं. Just you have to change the highlighted words into the tense which is given in the bracket. See how here it is been mentioned कि past continuous tense में आपको उसको change करना है. ये highlight किया हुआ है, this is past continuous tense, and when you are changing to past perfect continuous, so it becomes the form which I explained you in the chapter tenses. That way you have to do the first exercise. Bracket inform instructions are given to you. You have to write as I have written over here. Just underline the highlighted word और किस tense में उसको change करना है वही आपको यहाँ पे लिखना है. See how it is done. Rewrite the sentences according to the instruction given in the bracket, जो bracket में दिए. यूज़ द पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन कलर. जो कलर्ड हाईलाइटेड वर्ड्स है क्वेश्चन में उसका फॉर्म आपको चेंज करना है. सी हियर लेफ्ट है, उसको आपको कौन से टेंस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस. तो लेफ्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है? हैड प्लस V3 फॉर्म. सो हाउ इट हैज़ चेंज्ड? हैड लेफ्ट. द सेम वे इन द अदर ऑल द सेंटेंसेज यू हैव टू डू लाइक दैट ओनली. अब इसमें दो है, इस सेंटेंस में दो वर्ड्स है जो आपको दो टेंस दिए हुए हैं ब्रैकेट में, उसमें चेंज करना है. फर्स्ट वर्ड यू हैव टू चेंज टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. मतलब वॉच का प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? दे के साथ आप क्या लगाते हो? आर. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म क्या है? इज एम आर प्लस ING फॉर्म. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में व्हेन यू आर चेंजिंग तो क्या हो जाएगा? आर वॉचिंग. फिर ये सेकेंड वर्ड जो है उसको आपको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. इन दैट व्हाट इज द रूल? हैज़ हैव प्लस V3 फॉर्म. तो दे के साथ वी पुट द वर्ड हैव एंड वॉच का वॉच्ड हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. फॉरगेट यू हैव टू चेंज टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ इन दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगेन द सेम फॉर्म हैज़ हैव प्लस V3 फॉर्म. तो शी के साथ वी विल पुट द वर्ड हैज़ एंड फॉरगेट का V3 फॉर्म फॉरगॉटन. Now the fourth one is hide. You have to change to past perfect continuous tense. What is the form for past perfect continuous? Had plus been plus ING form of the verb. So it will change to had been hiding. बाकी खाली वही word change होगा, बाकी का sentence as it is रहेगा. सो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है पूरा सेंटेंस. बट इन एग्जाम इफ इट इज़ आस्क्ड यू हैव टू राइट द होल सेंटेंस. ओनली द चेंज विल बी इन द हाईलाइटेड वर्ब. लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन. लुक. ये सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, उसको आपको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस में. सो उसका ये जो है रूल इट इज़ वॉज वेयर प्लस ING फॉर्म. तो इट विल चेंज टू यू के साथ यू विल पुट वेयर एंड लुक का लुकिंग. सो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? यू वर लुकिंग वेरी प्रिटी इन दैट ड्रेस. ऐसे यू हैव टू राइट इट इन द एग्जाम. देन द नेक्स्ट वन इज वर्क. यू हैव टू चेंज टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो व्हाट इज द फॉर्म फॉर दैट? हैव, हैज हैव प्लस बीन प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो द सेंटेंस विल बिकम आई हैव बीन वर्किंग on this project for 2 weeks. So you have to do like this. Now let's move on to the next exercise. In that it is given complete these sentences with the correct participle form of the verbs. See here the help box is given according to the formation of the sentence, past tense, past
or continuous tense, you have to use the verb in its participle form. So first one is already been done for you. The second one is the dash boy was rushed to hospital. So was is given past tense, so injure का क्या हो जाएगा, injured. The third one is I watched a show about dash woman. अब this is for continuous, so work का हो जाएगा working woman. Then the fourth one is the principal comforted the comforted, past tense है तो worried students, past tense of worry. Then I like eating, क्या अच्छा लगता है, fried rice for lunch. And the last one, don't go out in this dash cold, freezing, that way. Now the next exercise, what you have to do, you have to underline the present participles. प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ing वाले वर्ड्स हो उसको अंडरलाइन करना है, एंड पास्ट पार्टिसिपल V2 फॉर्म वाले वर्ड्स को आपको सर्कल करना है. एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड राइट V इफ दे फंक्शन एज वर्ब्स. अगर वो वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू राइट V, एंड इफ दे आर एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव यू हैव टू राइट A. नाउ इन दिस सी आई विल एक्सप्लेन यू द फर्स्ट वन, इट इज़ वेरी इजी, यू विल कम टू नो. इसमें कौन से वर्ड है, एक है ये हर्ड, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल तो सर्कल कर दिया, एंड दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सो यू हैव अंडरलाइन. नाउ हर्ड मीन्स कामना हर्ड, तो ये वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, सो यू विल राइट वी ऑन टॉप ऑफ दैट. देन क्रीकिंग नॉइज, अब नॉइज को डिस्क्राइब कर रहा है, सो इट इज एन एडजेक्टिव. आई होप you would have understood it. Let's move on to the second one. In this fighting, shrinking, there is no past participle, so both you have underlined, both are present participle. Now see here, we are fighting means the verb action is going on, so this is the verb. And here shrinking ozone layer, ab ozone layer ko it is describing, so it is an adjective. Now the next one, promised, past participle, circle it. Interesting, present participle, underline it. अब promised है वो verb की तरह act कर रहा है, and interesting book, it is describing the book, तो वो adjective हो गया. Now next, smiling, present participle तो underline कर दो. riding, present participle, underline. अब child को describe कर रहा है smiling, so it is adjective. और who is riding मतलब ये काम हो रहा है, doing verb है तो it's a verb. Now fifth one, in that waved you have to circle the past participle. cheering, present participle, underline it. So waved it's a verb की तरह act कर रहा है. And then cheering fans it is describing, so it is an adjective. Now the last one is I am making. Now making is present participle, you underline. Steamed and bake, here there are two past participles, so you have to circle it. Now making is a doing verb, so verb. And steamed rice it is describing, so it's an adjective. Dish it is describing, baked, so it's an adjective. Now let's move on to the vocabulary part. In this you have to match, the expressions are given over here in A column and the meanings of that expressions are given over here. So you have to match the expressions to their meanings. First one is being done. For the time being means for a short period of time but not permanently. You have to write the numbers over here, no need to draw lines and match it, okay. Now the second one is from time to time. Its answer will be occasionally but not regularly. Then the third one, have time to kill. The third answer is to have a lot of spare time, to not have much to do. Then the fourth one, in less than no time. What will be the meaning for that? So quickly that it is surprising. Then fifth one is take your time. In that the answer will be to do something slowly and carefully without any hurry. The sixth one, time and again. What do you mean by time and again? Its answer is often or on many occasions. Now this exercise, in the next exercise you have to write this A column words in the sentence according to their expressions. So you have to use this according, you can read the meanings and you have to use this A part words in the next exercise.
You have to complete these sentences with the correct expression from exercise A. So first one is being done for you. The second is, this project is very important and needs to be submitted only after a month, so take your time to complete it that way. You have to use that expression, आपको उसके इसमें यूज़ करने according to the meaning जो सूट होगा इसमें उस हिसाब से. The third one is, you can use my room for the time being till you move into a hostel next week. The fourth one, Mrs. Chand wants her children not to play cricket in the garden time and again, but they never listen to her. Now the fifth one, they live in the same town and meet each other from time to time. And the last one is, a mole has completed his work. He now has time to kill and does not know what to do. इस वे में आपको लिखना है. यू हैव ए पार्ट में जो वर्ड्स थे उसके मीनिंग्स रीड करके यू हैव टू अप्लाई दैट वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस. Now the last one is about dictionary work. In this dictionary work, see, BRE tells us the pavement. Pavement मतलब BRE है वो ब्रिटिश इंग्लिश के लिए शॉर्ट फॉर्म है कि वी आर यूजिंग BRE. ये डिक्शनरी में दिया होता है साइड में. एंड इन अमेरिकन इंग्लिश AME वही वर्ड का अमेरिकन इंग्लिश में वर्ड होगा साइड वॉक. पेवमेंट को वी से पेवमेंट इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड in American English we say sidewalk. Same way here one more example is given. Railway we say in British English and railroad we say in American English. So you have to see the dictionary, find out the words and you have to write कि drapes we are saying it in American English and British English में we are saying curtains. So you have to write the short forms over here ki which is used in British English and which is used in American English. See the second one, elevator we say in American English and in British English we say lift. Then the third one, check we say in American English and bill we say in British English. Fourth one, autumn हम लोग British English में बोलते हैं और fall बोलते हैं American English में. The fifth one is lorry, वो है British English word and truck है American English word. So we mix up and say, हम लोग बात करते हैं, we use according to our language. कभी हम लोग British English का word use करते हैं जो हमें easy पड़ता है, कभी हम लोग American English का word use करते हैं. Tap that is British English और American English में faucet कहते हैं. So हमारे लिए tap easy है, so we हमेशा we use this British English word. Then trousers British English and pants American English. Apartment American English and flat British English. So you see it in the dictionary so that you will get a clear idea. Dictionary में साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है कि ये British English का वर्ड है, ये American English का वर्ड है, ऐसे. So dear children, you have to complete this textual exercise in the textbook itself with a pencil and read the question answers and meanings properly. I hope you have understood and thank you very much.